थोड़ा हार्ड स्टैंड है मेरा इस पे कि एमबीए इज इम्पोर्टेंट. आई वेंट अगेंस्ट द फैमिली इन अ वे. आई सेड कि आप टेंशन मत लो, मैं करूंगा ये वाला ट्राई. सारे लोग जो स्टार्टअप में काम करते हैं बहुत ओपन होंगे और फाउंडर्स भी सबसे बहुत कुछ शेयर करते होंगे, बट ऐसा नहीं है. मैं डिसाइड करूँ क्या बनाना है, मुझे कोई बोले ना कि क्या बनाना है. सो देन आई थॉट एमबीए इज द बेटर रूट. वहाँ पे तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इनटू प्रोडक्ट. सो गॉट इनटू दैट. एक्साइटमेंट रहता है बट एक वो प्रेशर भी रहता है कि यार 21 का हो गया, अभी तक कुछ किया नहीं. हाँ, कुछ करना है. मैंने जितना काम किया ओवर द इयर्स, आई फिगर्ड आउट कि हाँ ये लोग बहुत इजीली बोल देते हैं कि हाँ एमबीए और नॉन एमबीए में कोई फर्क नहीं है, एवरीथिंग इज ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग. ऐसा नहीं होता. I would like you to introduce yourself. Sure. So that we get some more context for the audience. Sure. So I'm Manoj. Obviously everyone knows I've done BTech from VIT. VIT CSE graduate, 2013 pass out. And then 2 years got into smaller startups. One out of them was a very early stage, which today we call as Redbus. So I was one of their initial employees, I would say. Then I just wanted to try out something different. So my job was into casino gaming, which I got from VIT. तो मेरे को लगा कि not ticket booking, I'll try something different. तो इसलिए मैं casino booking में गया, casino gaming में. And there I started working on casino games, which today you call as slot machines, जो वो coin डालते हैं and then there are reels and all those things. वो सब. So I was making that in Bangalore for 2 years. And post that I figured out कि I'm able to enjoy the gaming part, but मुझे decision making में इतना मजा नहीं आ रहा था because I wasn't involved in that. मुझे चाहिए था कि हाँ मैं decide करूँ क्या बनाना है, मुझे कोई बोले ना कि क्या बनाना है. So then I thought MBA is the better route. वहाँ पे तुम्हें opportunity मिलेगी into product. So got into that. IIT Delhi से मैंने MBA किया. There is a Department of Management Studies उनका. So वहाँ पे जाके MBA करके then I got into IBM. Again a blunder I would say because मैं स्टार्टअप वाला बंदा हूँ in a way, so मुझे नहीं comfortable लगा IBM. Within like 7-8 months I figured out कि हाँ मैं ये छोड़ दूँगा. And I was a brand manager there looking at their sales for South of India. And उसमें उनका software and the servers everything was included. So काफी बड़ा opportunity था, but I wasn't enjoying क्योंकि बहुत बड़ी organization थी. Almost like 4 lakh people working there. And I used to work in like 20, 30, 50 kind of teams. तो इसलिए मैंने वो छोड़ा. And then I got into a startup which was Beijing based. And the product was keyboard, the Android keyboard that you use for typing. जैसे suppose तुम आज WhatsApp खोलते हो उस पे keyboard आता है, right? Where you type the message. वो हमने product इसलिए चुना because even before your friend knows कि तुम क्या लिखने वाले हो, तुम्हारे keyboard को पता होता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है. So I thought कि why not capture that market. तो वो बीजिंग में चल रहा था उनका एक प्रोडक्ट एंड दे वांटेड टू लॉन्च इन इंडिया. सो आई वाज द फर्स्ट एम्प्लॉय हियर. मैंने फिर उनका एक टीम सेटअप करवाया इन बैंगलोर एंड इन दिल्ली. दिल्ली में इट वाज सेल्स, बैंगलोर में इट वाज टेक. एंड देन ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड गोइंग प्रीटी वेल, बट देन कुछ इश्यूज हुए उस स्टार्टअप में एंड इट केम डाउन. तो एंड देन आई थॉट व्हाट इज द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. तो 6 साल पहले की बात है. आई फिगर्ड आउट कि हाँ फिनटेक काफी बड़ा हो सकता है इन द फ्यूचर. So I got into fintech in India, and yeah, here I am. So Moneyview में it is around 5 years plus kind of experience, जिसमें I'm looking at lending and then now neo banking and UPI as a product platform. So that is what I am. जब आप Redbus में थे, right? Yeah. You told कि आपको Redbus के बाद वो casino वाला मिला through VIT. Yeah. So during the Redbus stint, you were in college. Yes. Internship था Redbus में मेरा. Last 6 months थे जो अपने कॉलेज के. That was the internship kind of period where everyone was getting into वो जो end of the year में होते हैं ना बड़े से प्रोजेक्ट कर लो, फ्री घूमो and all of that. तो वो चल रहा था सबका. I figured out कि शायद मुझे मजा नहीं आएगा जो ऑर्गेनाइजेशन में मुझे VIT से शायद जॉब मिले. I wasn't like so sure about it. तो इसलिए मेरे को लगा चलो अपना ही कुछ ट्राई करते हैं. तो मैंने काफी जगह अप्लाई किया. तो मेरे पास काफी स्टार्टअप से ऑफर्स थे. वन आउट ऑफ दैट वाज रेडबस. तो मेरे को था कि हाँ ये कुछ ऐसा डोमेन है जो शायद बूम करेगा बाद में, इसको ज्वाइन करते हैं. तो इसलिए मैंने वहां पे इंटरव्यूज वगैरह देनी थोड़ी कम कर दी एंड आई वेंट टू रेडबस एज एन इंटर्न. बट इन रेडबस ऑल्सो आई वाज गोइंग बैक एंड फोर्थ टू VIT कैंपस टू अप्लाई फॉर अदर जॉब्स एंड ऑल ऑफ दैट. वहां से मुझे फिर कसिनो स्टार्टअप मिला. तो मेरे को लगा कि नहीं अब ये ज्यादा बेटर है. सो लेट्स गो देयर.
राइट। तो रेड बस में आप जो है इनिशियल लेवल पे थे, राइट, एंड यू सॉ द कंपनी ग्रो, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक कि रेड बस की जर्नी में क्या सही रहा, राइट, और आपके टाइम में क्या आपने पैटर्न नोटिस किया, राइट, देयर हैज टू बी अ पैटर्न फॉर सक्सेसफुल पीपल। तो ऐसा रेड बस के फाउंडर्स में, उनकी टीम में ऐसा क्या था दैट फोड़ डाला उन्होंने मार्केट को? तो आई वुड से ये मेरे दिमाग में काफी क्वेश्चन घूमता रहता है पैटर्न्स का। आई ऑल्सो गेट इंट्रीग्ड बाय हाँ क्या चीजें कॉमन है सक्सेसफुल कंपनीज में या स्टार्टअप्स में। उसी वजह से मेरे को लगता है कि हाँ मेरे को उससे हेल्प मिलता है टू फिगर आउट व्हाट इज द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो रेड बस पर्टिकुलरली मुझे ऐसा लगा दैट दे फिगर्ड आउट अ वेरी आई वुड से पिन पॉइंटेड काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो इंडियन यूजर्स फेस कर रहे थे उस टाइम पे। लाइक वी आर नॉट दोज पीपल जो टेस्ला ऑनलाइन खरीद लेके जाके, राइट। सो वी आर दोज जिसको यहाँ से घर जाना है वीकेंड पे एंड वी आर नॉट गेटिंग द टिकट्स। तो हम कुछ करें ऐसा जिससे लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो जाए थोड़ी सी। सो दैट वाज द कोर दैट आई हैड इन माइंड कि कोई ऐसी स्टार्टअप जो ऐसा कुछ इंडियन प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो। दैट इज व्हाट आई फेल्ट कि हाँ रेड बस में थोड़ा सही जा रहा था। एंड इट वाजंट लाइक लेट्स से थोड़ा सा स्वैंकी काइंड ऑफ स्टार्टअप्स व्हिच आर मतलब फॉर एग्जाम्पल गेमिंग इज ऑल्सो अ बिट डिफरेंट, राइट। इट इज नॉट सॉल्विंग आई वुड से टू मच ऑफ अ कस्टमर प्रॉब्लम, राइट। मतलब वो तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ पीपल से कि हाँ लूडो खेल लो या फिर चेस खेल लो, दैट इज मोर ऑफ फिलिंग अप योर टाइम। बट एक्चुअली अगर आप कोर इशू कुछ सॉल्व कर रहे हो तो ये दूसरा सेगमेंट है ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स। दैट इज व्हाट आई फेल्ट कि रेड बस ने काफी जल्दी क्रैक किया कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एंड आई थिंक अदर पीस वाज जस्ट द ग्रिट ऑफ फाउंडर्स एंड ओवरऑल openness in the team. And again I would say ये बहुत अनकॉमन है। ये लगता है सुनने में कि हाँ सारे लोग जो स्टार्टअप में काम करते हैं बहुत ओपन होंगे और फाउंडर्स भी सबसे बहुत कुछ शेयर करते होंगे, बट ऐसा नहीं है। तो मैंने रेड बस में ऐसा देखा where the founders were too open. I was actually working with a co-founder, so they have two founders and I was working with Charan Padmaraju. He is one of the founders and we were making a seat seller kind of bus के लिए operating system. Like बस सेलर्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे where they can put their entire bus online. तो बहुत ही कोर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे वो एंड द ओपननेस दैट दे हैड टू लिसन टू अदर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज एन इंटर्न बट इवन आई वाज एडिंग वैल्यू टू द एंटायर चेन। तो आई फेल्ट कि हाँ दिस इज द प्लेस दैट दे शुड बी पार्ट ऑफ माय जर्नी। तो ये आई थिंक मेरे को दो चीजें लगी जो रेड बस में सही। ट्रू है। आई थिंक बिकॉज हम भी कई सारे फाउंडर्स से मिले, राइट, एंड वीएटी में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। सो एक ये चीज है फाउंडर्स में दैट जो फाउंडर बहुत ही ज्यादा ओपन रहता है टू क्रिटिसिज्म, टू रिव्यूज, इवन जो उनसे हायरार्की में नीचे है, आई थिंक दे सक्सीड। और बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे होते हैं दैट रेवेन्यू कुछ किया नहीं बट मतलब टशन में रहना है, राइट। सो टशन वाले जो है वो मतलब शायद एक लेवल तक पहुंच जाएंगे बट उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे, राइट। इट वॉज ग्रेट। लाइक आई थिंक रेड बस ने कुछ तो फोड़ा है। आई थिंक दे वर द फर्स्ट वंस, राइट, जिन्होंने ये कंसेप्ट डाला दैट यू कैन बुक अ बस। Yeah, it was very मतलब बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है बिकॉज इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि हाँ कैसे तुम्हें एक स्टार्टअप स्टार्ट करनी चाहिए। बिकॉज दे वेंट टू बस ऑपरेटर और वो बस ऑपरेटर की टिकट ज्यादा बिकती नहीं, तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा बीइंग इनटू लाइक स्टार्टिंग अप। तो उन्होंने बोला कि ये 10 सीट हमें दे दो, हम तुम्हें आज ही पैसे दे देते 10 सीट के, विच इज फ्रॉम आई थिंक चेन्नई टू बैंगलोर और समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर द डेस्टिनेशंस, बट उन्होंने वो 10 सीट का पे कर दी। फिर उन्होंने रेड बस ऐप पे डाल दी वो 10 टिकटें और बोला कि हम देखते हैं हम कैसे बेच सकते हैं। एंड देन दे फिगर्ड आउट कि हाँ ये तो बहुत जल्दी सेल हो गई, तो व्हाई नॉट ऐड मोर। तो ऐसे करते करते उन्होंने इतना स्केल कर लिया कि पूरी की पूरी बस अब लोग उनको दे देते थे कि हाँ अब तो आप ही सेल करो और वी आर जस्ट मेकिंग अ कट आउट ऑफ इट, दैट्स इट। तो ये बहुत ही सही था जो अप्रोच उन्होंने लिया आई थिंक। एंड ऑल दिस इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। एक्चुअली जब मैं निकल भी रहा था आफ्टर माय इंटर्नशिप व्हेन आई गॉट इनटू दिस कैसीनो गेमिंग थिंग, द रेड बस बिट जस्ट गॉट सोल्ड टू गोएविवो। So that was the day actually when I was leaving कि उस टाइम पे ये सब चीजें चल रही थी। So I also figured out कि हाँ जब बड़ी कंपनी आती है बीच में और एक स्टार्टअप चल रही है, उनका मर्जर कैसा फील होता है या लोगों में क्या एंजाइटी होती है कि हाँ अब ये क्या करवाएंगे हमसे, ऐसा तो नहीं है बोल देंगे तुम बस करो we'll start something of our own। बट ऐसा नहीं हुआ। लाइक गोएविवो में आज भी टिकट बुकिंग बीच में इंटीग्रेटेड है, यू डोंट नो कि वो रेड बस से है बट ऐसी चीजें चल रही हैं बैक। सो काफी अमेजिंग स्टोरी थी वो भी।
राइट भाई, अब लाइक डंजो टाइप से स्टोरी बहुत हो सकती है दैट दे मे एक्वायर यू एंड देन शट डाउन यू, राइट? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू कि अभी आपने रेड बस वाला तो कर लिया, ठीक है, एंड आई थिंक ड्यूरिंग दैट टाइम यू वुड बी अराउंड 21-22, राइट? तो तब लाइक माइंडसेट क्या रहता है, क्योंकि मैं खुद 21 का होने वाला हूँ 3 महीने में, ठीक है, एंड आई थिंक दैट एक्साइटमेंट रहता है बट एक वो प्रेशर भी रहता है कि यार 21 का हो गया, अभी तक कुछ किया नहीं, हाँ कुछ करना है। सो हाउ डिड यू फिगर आउट कि हाँ अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, हाउ डिड यू ऑल्सो प्रिडिक्टेड कि हाँ ये शायद राइट पाथ होगा, लाइक दिस इज मेंट फॉर मी? क्योंकि ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं आपके पास, आपने बोला ऑफर्स भी थी, तो ये वाला आपके लिए सही है, वो कैसे सोच लिया? तो इसकी भी एक अप्रोच है भाई, जो मैंने पहले भी थोड़ा सा बात किया कि मैं कैसे अपॉर्चुनिटी को जज करता हूँ कि हाँ कुछ अगर आपके सामने आ रहा है या फिर आप बेसिकली अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेड बस कहीं आई नहीं, मैंने क्रिएट की अपने लिए अपॉर्चुनिटी। देन जो सेकंड वाली अपॉर्चुनिटी थी, आई कुड हैव बीन इन रेड बस और मैं सोचता ठीक है इंटर्नशिप चल रही है, कन्वर्ट हो ही जाएंगे, छोटी सी टीम है, वैल्यू एड भी अच्छा हो रहा है, करते हैं यहीं पे काम, क्या प्रॉब्लम है। बट फिर भी मैंने सोचा नहीं चलो एक बार जाके देखते हैं वापस कैंपस पे क्या चल रहा है, कैन आई गेट इन अदर काइंड ऑफ गुड रोल, कोई अदर एक्साइटिंग काइंड ऑफ डोमेन आ सकती है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि मतलब जब ये सोचते हैं कि हाँ अपॉर्चुनिटी क्या सही है, तो एक तो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं आपके घर वाले। दिस इज आई वुड से काफी इग्नोर्ड कि लोग क्या बोल रहे हैं, आपके घर वाले क्या बोल रहे हैं, बट माई पेरेंट्स टोल्ड मी कि हाँ तुम स्टार्टअप में मत जाओ, क्योंकि आई एम फ्रॉम अ फैमिली जो सारे डॉक्टर्स हैं, मैं पहला इंजीनियर, तो उनको लगा कि यार अब तू ये भी करेगा, अब तुझे स्टार्टअप वाले वर्ल्ड में भी जाना है, तुझे सारे रिस्क उठाने जिंदगी के अभी, एंड टू वेन यू सो यंग। तो उन्होंने बोला कि मत जाओ, मत करो वहां पे काम। बट देन आई फिगर्ड आउट कि नहीं, वहां पे ज्यादा मजा आ रहा था, वहां पे ज्यादा किक मिल रही थी इन टर्म्स ऑफ कि जैसे आज काम किया और परसों वो चीज लाइव है और लोग यूज कर रहे हैं, तो मेरे को था कि मतलब मैं बाहर जाके मार्केट में बोल सकता हूँ ये मैंने बनाया है। तो वो जो फन था ना उसका, वो बड़ी कंपनीज या कहीं पे आ नहीं सकता। सो दैट इज व्हाई आई फिगर्ड आउट कि हाँ ठीक है, जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अगर सपोज लेता हूँ मैं, वो भी ऐसी काइंड ऑफ कोई डोमेन हो जो बहुत इमीडिएट रिजल्ट्स मेरे को दिखाए। नहीं तो तुम बहुत अगर स्लो एनवायरनमेंट में चले जाओ, एक तो तुम खुद स्लो हो जाते हो और दूसरा तुम्हारी थिंकिंग ऐसी हो जाती है कि हाँ सेफ चलते रहो, मतलब कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटी मत पिक करो। सो आई फील कि वो जो टाइम था, आई वेंट अगेंस्ट द फैमिली इन अ वे। आई सेड कि आप टेंशन मत लो, मैं करूंगा ये वाला ट्राई, इसके बाद कुछ और भी ट्राई करूंगा, मैं आज ही बता रहा हूँ आपको कि मैं कुछ और भी ट्राई करूंगा। सो वो करते करते आई फिगर्ड आउट कि हाँ ठीक है, यहाँ पे मजा आ रहा है, आई वॉन्ट टू स्टे हियर, एंड दे ऑल्सो फेल्ट कहीं ना कहीं कि हाँ सही चल रही है इसकी चीजें, तो यू कैन गो हेड इन दैट अपॉर्चुनिटी। तो एक ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट यही है, आई फील के कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन इंडिया स्पेसिफिकली। सो आई एम अ कोर बिलीवर ऑफ इंडिया इन अ वे। आई डोंट वांट टू मूव आउट, आई डोंट वांट टू वर्क फॉर अ कंपनी जो बाहर के लिए सोल्यूशन बना रही है। बहुत कोर बाय हार्ट इंडियन हूँ, तो इन दैट सेंस आई फिगर्ड आउट के कुछ प्रॉब्लम जो इंडिया की है और इंडियन सॉल्व कर रही है कोई कंपनी, आई वांट टू बी इन दैट कंपनी एंड लाइक मेक इट लार्ज। And that is why, मतलब long story short, there are a lot of people from Redbus after 10 years who are working in Moneyview with me right now. तो वो उस टाइम पे प्रोडक्ट मैनेजर्स थे, I was a developer. Now they are here as a PM and I am also joining there as a PM. तो हम सारे प्रोडक्ट टीम में आ गए। तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे को लगता है कि हाँ जो वो पूरा सर्कल प्ले आउट हुआ वो बढ़िया था। So I think एक इससे मेरा एक ये फिगर आउट मैं कर रहा हूँ दैट आपका ये माइंडसेट रहना चाहिए कि एक अपॉर्चुनिटी बड़ी दिख रही है, यू विल गो एंड हंट फॉर इट वॉट एवर इट टेक्स, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम नॉट गेट कंफर्टेबल विद इट। यू ऑलवेज लुक 2 steps ahead कि आगे क्या कर सकता हूँ मैं और ज्यादा, वो एक रहना चाहिए, राइट? तो आपने अभी 23 की एज तक 2 स्टार्टअप में काम कर लिया, ठीक है? तो उसके बाद आपने जब MBA किया, डिड यू फील एनीथिंग न्यू, लाइक बिकॉज आई थिंक कि 2 स्टार्टअप में काम कर लिया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ अभी आता तो है, राइट? यू मे नॉट नो द टेक्निकल वर्ड कि इसको कौन सी स्ट्रेटेजी कहता है, बट आप यूज तो कर रहे हो। तो मतलब डिड यू फील द MBA वाज वर्थ इट और क्या था? तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मार्केट में आज जो चल रहा है कि करने की जरूरत ही क्या है। अपॉर्चुनिटी तो मिलती है, पैसा भी मिलता है, ऑब्वियसली बोथ आर इम्पोर्टेंट इन लाइफ। तो अगर तुम्हें दोनों चीजें मिल रही हैं तो तुम MBA करने के जा रहे हो।
दूसरा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में ये भी आता है, चलो अगर करने चले भी गए, फॉर एग्जाम्पल बड़ा ब्रांड है और ये सारी चीजें, तो वहां पे पैसा बहुत लगेगा, तो फिर तुम क्या ही करोगे जाके, अगर सेम ही काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में आके काम ही करना, तो फिर MBA क्यों? तो अगेन मैं इसमें ऐसे थोड़ा हार्ड स्टैंड है मेरा इस पे कि MBA इज इम्पोर्टेंट। मैंने जितना काम किया ओवर द इयर्स, आई फिगर्ड आउट कि हाँ ये लोग बहुत इजीली बोल देते हैं कि हाँ MBA और नॉन MBA में कोई फर्क नहीं है, एवरीथिंग इज ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग। ऐसा नहीं होता। I have worked with someone who's a non-MBA in product domain and an MBA in product domain. I figured out कि उन लोगों के पास जो स्ट्रक्चर होता है थिंकिंग का, इवन आई डोंट वैल्यू नेम्स ऑफ फ्रेमवर्क्स एंड ऑल दैट, कोई रेलेवेंस है ही नहीं। बिजनेस बनाने में आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि हाँ आपको स्वॉट एनालिसिस करना है कि क्या करना है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपको वो करना भी आता है कि नहीं। सो आई फिगर्ड आउट देयर इज अ गैप व्हेन यू आर ग्रेजुएट, आपको वो चीजें नहीं दिखती हैं जो नुआंसेस हैं टू ग्रो द अपॉर्चुनिटी लार्जर। आप बहुत ही एग्जीक्यूशन ड्रिवन बंदे बन जाते हो। सो डोंट गेट इनटू दैट काइंड ऑफ अ डोमेन जहां पे आप सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे हो किसी के लिए, बिकॉज देन एक पॉइंट के बाद आपको लगेगा कि हाँ मतलब यू आर जस्ट, जैसे चेस में बोलते हैं ना, आप एक पॉन है स्टार्टिंग लाइन में एंड समवन इज मूविंग, वहां पे मत जाओ। यू बी ऑन द सेंटर स्टेज पीछे एंड देन फिगर आउट आगे क्या करना चाहिए। सो दैट इज व्हाई आई फिगर्ड आउट कि हाँ MBA इंपॉर्टेंट है। नाउ दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन कि हाँ मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, वो सारी चीजें अलग है। बट इन जनरल आई फील के MBA इज इम्पोर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड एंड इट इज नॉट अबाउट फ्रेमवर्क्स और एनीथिंग, इट इज जस्ट अबाउट कि हाँ आपका माइंड कितना ओपन है, आप क्या सोच सकते हो अपॉर्चुनिटी के बारे में कि नहीं। इट इज नॉट लाइक हाँ दूसरे नहीं सोच सकते और MBA सोच सकते हैं, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। बट MBA के पास थोड़ी सी थिंकिंग ऐसी होती है जो उनको दी जाती है उस 1-2 साल में, जो उनको बोलती है कि हाँ अपना दिमाग खोल के थोड़ा और सोचो। तो दैट इज व्हाट आई फील कि हाँ MBA ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। That is out of question for me. Right. A quick question: MBA after a job experience or just out of college? Okay. ये भी आई थिंक एक काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफी लोग में से ऑलरेडी पूछ चुके हैं, फैमिली में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आई फील अगर तुम्हें अपने MBA को जस्टिफाई करना है अच्छे से अपने लिए, नॉट फॉर द वर्ल्ड, तो तुम काम करके जाओ MBA में। बिकॉज आई फील अगर आप वर्क एक्स के बिना जाते, इट्स जस्ट अ शॉर्टकट फॉर यू टू मेक मनी। आपको पता ही नहीं है आपको लोगों के साथ कैसे काम करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टू सोशल इन योर कॉलेज, तो तुम बहुत डिफरेंट तरीके से एक्ट करोगे किसी कंपनी में। अगर तुम बहुत क्लोज रहोगे लाइक एन इंट्रोवर्ट, तो तुम बहुत डिफरेंट तरीके से एक्ट करोगे कंपनी में। बट व्हेन यू गेट डायरेक्टली फ्रॉम दैट कॉलेज का स्टेटस इनटू MBA के बाद सारे लोग ऐसा सोच के निकलते हैं अब तो 10 लोगों की टीम हैंडल करनी है, हम मैनेजर बन गए हैं इन अ वे, तो अब इसको मैं बताऊंगा कि क्या करना है। बट यू नेवर वर्कड इन द ऑर्गेनाइजेशन और इन दैट इंडस्ट्री वाला सेटअप, तो पहले थोड़ा सा काम तो करके आओ, देखो कि लोग कैसे काम कर रहे हैं और तुम भी एक ग्राउंड रियलिटी चेक लेके आओ। उसके बाद MBA करो एंड देन लाइक ग्रो इन दी करियर। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ 4-5 साल लगा दो काम करते हुए, 1-1.5 साल 2 साल काम करो, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हाँ जब कल तुम भी MBA कर लोगे तो उसके बाद एक्चुअली कैसे काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में जाके। सो दैट इज माय टेक।